Okay, so today we are going to continue with theory of friction, and probably we are going to finish the theory of friction as well. ज़्यादा कुछ है नहीं अब, but whatever is remaining we'll just cover it today. तो हमने motion of two blocks one over another ये pending रखा था. We'll see it today. Motion of two blocks. Well, डिपेंड्स दोनों ब्लॉक मोशन में आएंगे कि नहीं देखेंगे बट वन ओवर अनदर तो बेसिक ये है कि हमारे पास जो भी सिस्टम होगा यू हैव वन ब्लॉक पहले सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है देन यू हैव अ ब्लॉक हियर इस ब्लॉक के ऊपर और एक ब्लॉक है समथिंग लाइक दिस ओके ये ऊपर का ब्लॉक जो है इसको ए ब्लॉक बोल देता हूँ नीचे का जो ब्लॉक है उसको बी बोल देता हूँ इसका मास स्मॉल एम लेता हूँ इसका कैपिटल एम लेता हूँ डजंट मैटर हाउ यू डिनोट इट कोई फर्क नहीं पड़ता है अब इसमें दो केस एक आप ऊपर की बॉडी को फोर्स अप्लाई कर सकते हो ए पे फोर्स अप्लाई कर सकते हो दूसरा आप बी पे फोर्स अप्लाई कर सकते हो सो इफ फोर्स F is applied on the upper body. ओके इसमें चार सिचुएशन अराइज होगी पहले तो एक ये है कि मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इसको मैं F बोल रहा हूँ अप्लाइड फोर्स F इसमें चार डिफरेंट कंडीशंस है कंडीशन नंबर वन when there is no friction जब मैं बोल रहा हूँ नो फ्रिक्शन मतलब there is no friction between A and B and B and floor ओके हम ऊपर के ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं there is no friction what will happen is only body A will move जब एक बॉडी मूव होगा क्योंकि A पे फोर्स लगाया फ्रिक्शन है नहीं तो only body A will move मतलब acceleration of body A will be applied force upon mass of body A small a. Acceleration of body B is going to be 0 right अब क्योंकि बॉडी B मूव नहीं हो रहा है बॉडी A बॉडी B के ऊपर मूव हो रहा है तो after some time it will fall down so you can find out what is time of fall so let us say the length of body B is L okay so you can find out time of fall so time of fall of body A from body B time of fall ये कैसे निकालोगे S equal to ut plus half at square S is L initial was 0 plus half acceleration of A t square तो आपको मिलेगा t square equal to 2 times of length upon acceleration of A right so this is 2 times of length upon acceleration of A is applied force and mass therefore t is equal to under root of 2 lm f right good so this is the time of fall okay just a minute okay तो ये हो गया केस 1 खत्म केस 2 if there is friction between A and B if there is friction between A and B अब इसमें ऐसा है फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B तो है बट अप्लाइड फोर्स
is less than limiting friction. अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो क्या होगा? नहीं, if applied force is less than limiting friction, in that case body A will not slide on body B, but these two will move together as a system because there is no friction between B and the floor. मैं ऊपर की बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा फिर भी दोनों बॉडी मूव होने वाली है, राइट? सो इन दिस केस what you can write is A and B will move together as a system. Right? So how do you find out acceleration in this case? So acceleration of A will be equal to acceleration of B because they're moving together. Applied force upon total mass. क्योंकि दोनों मास को ये फोर्स एक्सेलरेट करवाएगा इसलिए. क्लियर? ओके. देन थर्ड कंडीशन, if there is friction between A and B but applied force is greater than force of limiting friction. मतलब अब A पे जो फोर्स लगा रहे हो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, मतलब the body A will slide over B with an acceleration. तो पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम देखना पड़ेगा. ये A बॉडी है, ये ड्राइविंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स होगा. कौन सा अपोजिंग फोर्स होगा? एफ के. बॉडी इज इन मोशन, काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? एफएल इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो. ओवरऑल बॉडी इज मूविंग हियर ओवरऑल. फिर वही एफ नेट इक्वल टू एम ए. yes, f minus fk by m, this is acceleration of body A. You already know fk is mu k times mg upon m. ये आ गया acceleration of body A. If you look at body B, बॉडी बी पे सिर्फ रिएक्शन होगा एफ के. यहां नहीं दिखाना चाहते आप ऊपर दिखा दो, ठीक है, वो सही रहेगा ज्यादा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ए पे, फ्रिक्शन ए पे इस डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन एफ के बी पे. वैसे भी थोड़ा और अलग तरीके से सोचना चाहो, जब मैं ए पे फोर्स लगा रहा हूं तो बी भी साथ में आगे जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जा रहा है, राइट? तो जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जा रहा है तो कौन ले जा रहा है उसको आगे? उसको एफ के आगे ले जा रहा है. इसलिए अगर अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन एफ है तो बी बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए. आया ध्यान में? नहीं? हाँ, देखो हमारे पास एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है ना? तो हमारे पास इसके ऊपर एक ब्लॉक है ए, इस पे ड्राइविंग फोर्स है एफ, बराबर? गुड. ए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, मतलब पॉजिटिव एक्स में गया, अंडरस्टैंडेबल. क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है. लेकिन बी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. इसका मतलब ज्यादा सोचना ही नहीं. इसका मतलब ये है कि बी के लिए भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन में एक फोर्स चाहिए, लेकिन बी पे तो हमने फोर्स लगाया नहीं. तो ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी नॉर्मल नहीं, रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन.
तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए भी। ओके, दैट्स इट, करेक्ट। बी जाएगा आगे, राइट। हाँ, तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे? बी का एक्सेलेरेशन इन केस ऑफ बी विल बी इक्वल टू कैसे निकालोगे? एफ के अपॉन कौन सा है? मास ऑफ पी। बट व्हाट इज एफ के? म्यू के छोटा एम, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी। तो आप स्मॉल एम कैपिटल एम में नहीं पढ़ना चाहते तो एम ए एम भी लिखो, बात खत्म। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट कंडीशन, चलो वैसे कुछ नहीं है। अब ये जो आपने एक्सेलरेशन ऑफ ए और बी निकाला, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हो जाएगा। बाकी आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, जस्ट टू सब्ट्रैक्ट इट। तो फॉर्मूला आप बना लोगे। ओके, हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता। वो ऐसा होता है कि हमेशा हमेशा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आप ए माइनस बी लिखते हो। यू कैन से दैट, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए हम माइनस करेंगे। यू कैन से दैट, बोल सकते हो, लेकिन वो वेलोसिटीज पे एप्लीकेबल होता है नॉर्मली, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा कि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है कि फाइनल ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मूव हो रहे हो विथ वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर, बाजू में कोई है विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, यू विल बी मेजरिंग 40, है ना, बिकॉज ऑफ सेम डायरेक्शन। अपोजिट में आएगा तो 140, मतलब 100 प्लस 60 160, है ना। वो वेलोसिटीज के लिए एप्लीकेबल होता है। बट यू कैन से, आप बोल सकते हो कि ठीक है, ए का और बी का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में इसलिए माइनस है, इट्स ओके, फाइन, दैट इज फाइन। बट अंडर वन कंडीशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, तभी लिख सकते हैं। नॉर्मली जब रिलेटिव की बात आती है, वो लेना भी है आपका रिलेटिव का, तो हमेशा आपको बोला अगर व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए माइनस ए बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बी माइनस ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए बी माइनस ए, ऐसा लिखते हैं नॉर्मली। बट यस, योर लॉजिक कैन आल्सो बी एप्लीकेबल हियर विदाउट एनी डाउट। डिपेंड करेगा ना किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। देखो वो अभी जब सेकंड केस लेंगे ना हम, तब समझेगा। क्योंकि सेकंड केस में आप क्या करोगे, नीचे को फोर्स लगाओगे, है ना। तो फिर डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन ए का ज्यादा है कि बी का ज्यादा है, राइट। वी विल सी दैट केस ऑल्सो। वेल, इसमें भी टाइम ऑफ फॉल तो लगेगा, क्योंकि देखो अब ये आ गई बात वही जो मैं आपको बता रहा था। अगर ए का एक्सेलरेशन ज्यादा है बी से, तो एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम ए विल फॉल डाउन। तो यहां पे वही बात आ गई, ए विल फॉल डाउन। तो व्हाट इज टाइम ऑफ फॉल? द सेम फॉर्मूला यहां से, अंडर रूट ऑफ 2l बाय ए, अंडर रूट ऑफ 2l by a, but which a with respect to b, okay, correct। तो बस a with respect to b सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे। इज इट क्लियर? नहीं, मुझे बताओ एक चीज, थिंक, थोड़ा सा सोचो, इमेजिन करो, एक ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट, हम फोर्स कहां लगा रहे हैं? ऊपर वाले पे। अगर नीचे वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है, तो ऊपर का ऑब्जेक्ट फॉल जब होगा, उसके इक्वेशन में सिर्फ ए का एक्सेशन देखा जाएगा, करेक्ट। अब ऊपर वाला भी मूव हो रहा है, नीचे वाला भी मूव हो रहा है, दोनों के दोनों एक्सीलरेट हो रहे हैं, राइट। तो ऊपर का ऑब्जेक्ट फॉल कब होगा? जब ऊपर के ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन नीचे से ज्यादा है, इसलिए ए माइनस ए भी आ गया, पहली चीज, राइट। तो जब फॉल की बात कर रहे हो आप, ए ऑब्जेक्ट बी से फॉल होगा, ग्राउंड से तो फॉल नहीं होगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या देखना पड़ेगा? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग।
Clear? Good. So this is why it is important for you to understand. एकदम क्लियर है ना, क्योंकि अगला समझेगा नहीं फिर इफ इट इज नॉट क्लियर. अब फोर्थ केस, there is friction between A and B and also between B and floor. Right. थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा. वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन मेनी मेनी थिंग्स. तो थोड़ा सा डायग्राम से समझाऊंगा ये, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड थिंग्स हियर. ये ऑब्जेक्ट बी था, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट ए था. गुड. फोर्स आपने अप्लाई किया यहां पे, राइट. तो पहली कंडीशन, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, है ना. ये इंपॉर्टेंट है. तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अपोजिशन विल बी एफ के, बिकॉज फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब द बॉडी इज इन मोशन. If the body is in motion, we talk about kinetic, right? Good. इसी का रिएक्शन यहाँ पे ऑन बॉडी भी. मैं इंडिविजुअली इसकी एफपीडी ड्रॉ करने वाला हूं, बट जस्ट टू टेल यू. अब डिपेंड करता है, देखो ऐसा है ना कि अब नीचे भी फ्रिक्शन है. बी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो फ्रिक्शन होगा backward FL dash, where FL dash is force of limiting friction between B and the surface of the floor. Correct. तो यहां पे डिपेंड करेगा if FK is greater than FL or not. तो इसमें मैं ऐसा करता हूं, I will go for individual FBDs. तो पहला ब्लॉक जो ऊपर का ब्लॉक है, इस केस में ड्राइविंग फोर्स इज हियर, opposing force Fk is here. In this case, you can write down acceleration of A as what? F minus Fk by M. ठीक है, मतलब ये तो चेंज नहीं होगा. अब आपके पास बॉडी बी है. बॉडी बी के लिए एफ के यहां पे है, एफ एल डैश यहां पे है. अगर एफ के ये एफ एल डैश से ग्रेटर हुआ तो बॉडी बी भी मूव करेगा, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन है. अगर एफ के ये एफ एल डैश से कम हुआ तो बॉडी बी मूव नहीं करेगा, मतलब सिर्फ बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर मूव कर रहा है. करेक्ट? क्लियर? वेरी गुड. अब ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एफ के ग्रेटर देन एफ एल डैश. व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट जस्ट बी? एफ एल डैश अपॉन mass of P. Right? समझ गया? तो this is the end of this topic. Then next case is exactly इसका उल्टा. If force F is applied on the lower body, if force F is applied on the lower body, मतलब ऐसा है, ये आ गया पहला बॉडी, उसके बाद है नीचे का बॉडी,
और इसमें भी सारे के सारे वैसे ही केसेस होंगे, और उसके नीचे है फ्लोर। हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स इफ पे, सेकेंड ब्लॉक पे। पहला केस ले लेते हैं, नो फ्रिक्शन, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्रिक्शन, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। So if there is no friction anywhere, only body B will be accelerated with applied force upon mass, correct? No, this is right, of course, but acceleration of A is 0, yes, that is also right, but B के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो B पे सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है, बिकॉज सॉरी ए पे, ऊपर की बॉडी पे, ऊपर की बॉडी जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया, राइट? तो इट विल एक्सपीरियंस अ सूडो फोर्स, है ना, एंड उसका एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव टू दैट ऑफ ए बी, अगर आप कंसिडर करोगे तो, अदरवाइज भूल जाओ, नो इश्यूज। व्हाट विल बी टाइम ऑफ फॉल ऑफ ए? टाइम ऑफ फॉल ऑफ ए अंडर रूट ऑफ 2l बाय एक्सेलरेशन ऑफ बी, क्योंकि अब क्या है ना ऊपर फ्रिक्शन है ना नीचे फ्रिक्शन है, हमने नीचे के ब्लॉक को हटा दिया, नीचे के ब्लॉक को हटा दिया तो क्या होगा, अपने आप पहला ब्लॉक गिरेगा, लेकिन ए किसका, ए जिस पे फोर्स लगा है उसका ए, 2l कैपिटल M बाय F। ओके, देन अगर हम इसमें फ्रिक्शन ला देते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन A and B, but applied force F is less than equal to limiting friction, क्या होगा इस केस में? सो क्यों नहीं मूव होगा? नहीं, B और A में FL डैश है, FL है मतलब, है ना, हमने फोर्स कहाँ लगाया, B पे, B और फ्लोर में फ्रिक्शन था क्या? नहीं, मतलब डेफिनेटली B तो मूव होगा, अभी A को साथ में लेके जाएगा। हाँ, गुड, नाउ यू आर टॉकिंग। तो ऐसा है कि कंबाइंड एक्सेलरेशन की बात होगी, करेक्ट, गुड। देन अभी बोल सकते हो सूडो फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी ए, आई विल नॉट गो इनटू दैट सूडो फोर्स थिंग एंड ऑल, वो जब लगेगा तब देख लेंगे, राइट? ओके, अब इसमें आप बोल सकते हो इफ द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो क्या होगा, दैट विल बी लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, खुद करो घर पे जाके आज। फिर बी और फ्लोर में भी फ्रिक्शन लाओ, तो ये दो केसेस होम असाइनमेंट है आपको, जस्ट थिंक, बहुत सिंपल सा केस है, यू टू थिंक, और उस केस में आपको टाइम ऑफ फॉल भी निकालना है ना, यू टू फाइंड व्हाट इज टाइम ऑफ फॉल इन दैट केस आल्सो, क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्टिंग, यू मे अप्लाई इट टू मेनी थिंग्स, बट इन्होंने जो दिया है, मोशन ऑफ एन इंसेक्ट इन अ रफ बाउल, मोशन of an insect in a rough bowl, मतलब एक बाउल है जहां पे फ्रिक्शन है, उस पे एक इंसेक्ट है, सो आई जस्ट टेक अ बाउल फर्स्ट, ये बाउल है, मान लो दिस इज अ बाउल, यू हैव अ इंसेक्ट हियर, मैं इंसेक्ट को भी एक बॉक्स बता रहा हूँ, डजंट मैटर बिकॉज इट्स जस्ट ओके। तो इन दिस केस सबसे पहले मैं एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करना चाहूंगा, क्योंकि एंगल कभी भी यहाँ पे वर्टिकल से मेजर होगा,
मैं मान लेता हूं ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, कुछ तो नाम देना, थीटा नाम दे दिया। ओके, तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट मुझे यहाँ पे आपसे रिएक्शन और फ्रिक्शन ये दो इक्वेशन चाहिए, बाकी हम न्यूमेरिकल्स में आएगा तो देखेंगे। रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, weight mg is always, this is here will be excellent। इंसेक्ट क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, करेक्ट, राइट, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, नीचे होगा, राइट। ओके, तो फ्रिक्शन नीचे होगा, पर मैं फ्रिक्शन बता रहा हूं ऊपर, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके, definitely if the insect crawls up the bowl up to certain height h, क्या हो गया ना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना है। इंसेक्ट ऊपर जा रहा था, एक हाइट तक पहुंचा, वापस नीचे आ गया, तो वो कंडीशन है। आपने देखा होगा बाउल में इंसेक्ट ऊपर जाने की कोशिश करता है, नहीं चढ़ पाता, वापस नीचे, कभी ऑब्जर्व करना, तो ये वो कंडीशन है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ग्रेविटी यस, बट एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच गया वर्टेक्स से, उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, अब कहां पे आ रहा है वापस, नीचे, तो द इंसेक्ट जस्ट स्टार्ट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेयर इज फ्रिक्शन नाउ, हाँ, तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा, तो ये सिचुएशन है, करेक्ट। और ये जिस हाइट तक मैक्सिमम जा पाया उसके ऊपर का मैं बोल दूंगा y है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अप टू व्हिच एन इंसेक्ट कैन क्रीप इनसाइड अ बाउल, मैक्सिमम h पूछ सकते हैं, और ये जो रेडियस है ये r है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज mg sin थीटा, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, तो r इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा। ओके, फिर आप इसको सॉल्व करो, सब कुछ करो, ठीक है, बट व्हाट यू नो इज इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग टू डू। FL by R is tan theta and tan theta is coefficient of friction. Okay, then you may also find out H. H कैसे निकालोगे, ये टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, R radius of the hemisphere, what is H then, R minus y, what is y if I ask you what is y, वो हाइपोटेन्यूस है कैपिटल R, ये तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से आपको y मिलेगा अंडर रूट ऑफ what, ठीक है, आप सॉल्व करो, तो यू कैन जस्ट डू इट सिंपल। तो व्हाट आई वांट इज, आपको ये h का इक्वेशन बनाते आना चाहिए, विच इज r1 माइनस, बेसिक मैथमेटिक्स से कर लोगे आप, 1 माइनस म्यू स्क्वायर, आई थिंक इट इज अंडर रूट आना चाहिए, तो ऐसा एक इक्वेशन बनेगा, राइट। तो यू हैव फाउंड आउट मैक्सिमम हाइट इन टर्म्स ऑफ रेडियस, क्योंकि मैं रेडियस मेजर कर सकता हूँ, मैं फ्रिक्शन मुझे पता हो सकता है, आई नो बिकॉज मैंने लिया है ना, तो मुझे पता होगा फ्रिक्शन कितना है, क्लियर, गुड। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज minimum mass hung from the string to start the motion, to just start the motion, minimum mass, ये अच्छा है, easy है, minimum mass hung from the string
to just start, just ये word important है, start the motion, because you know that force is limiting friction here. Okay, right? Then ओके तो सिचुएशन ऐसा है कि आपके पास एक टेबल है, टेबल पे एक मास है, लेट अस से सम नेम एनीथिंग, ए ब्लॉक विथ मास m1, आई डोंट केयर, m1 बोल दो। यहाँ पे एक मास m2 है विच इज हैंगिंग हियर, यू हैव अ पुली सिस्टम, देन द स्ट्रिंग, द सेम स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? सेम टेंशन। What is the minimum mass that can make m1 move? मतलब what is the value of m2 so that it can make m1 move? कैसे करोगे इसको solve? है ना, मास बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेज पे वो मूव होगा। तो सबसे पहले आपको देखना होता है विच आर द फोर्सेस एक्टिंग। देखो ऐसा है, यहाँ पे तो टेंशन है ही, यहाँ पे होगा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिकॉज जस्ट वर्ड आया तो एफ एल लिखेंगे। वेट तो नीचे है ही m1g, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। यहां पे देखोगे तो टेंशन T है, और हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। कैसे कैसे सॉल्व हो गया? जस्ट मूव की बात किया, मतलब जस्ट मूव की बात किया तो T माइनस एफ एल इक्वल टू 0। जस्ट मूव, यू डोंट कंसिडर एक्सीलरेशन, राइट? क्लियर? तो T इक्वल टू एफ एल, बट T is also equal to m2g. Very good. So you have FL equal to m2g. Okay. So you have FL equal to m2g. FL equal to m2g. FL is mu L times of normal reaction m2g, but किसकी normal reaction की बात चल रही है? m1g. Mu L m1g equal to m2g. So this is the minimum mass that is required to just start the motion. Simple. Then यही चीज हम inclined plane पे भी कर सकते हैं, on rough inclined plane. So I can take case 1, rough horizontal plane. Just a minute. Horizontal plane. Now what we want to see is on an inclined plane. तो ये horizontal था, अब हम देखते हैं incline। अब यहाँ पे ये जो है horizontal है या फिर incline है, तो ये rough surfaces है, तो you have to know this. तो I don't have to mention every time कि surface rough होगा। अगर कोई friction की बात कर रहा है तो normally rough surface ही होगा ये। Okay, तो all right, sufficient, good enough. Then we have a block here. If I take this angle to be, let us say theta, मान लो, क्या फर्क पड़ता है theta? What is this component? Very good. What is this component? Excellent. What is this component? R. मान लेना this is m1 है ना, ये m2g नीचे, ऊपर टेंशन। तो यहाँ पे भी मोर और लेस वैसा ही है, मोर और लेस वैसा ही है। तो जस्ट मूव, जस्ट स्टार्ट मूविंग, मतलब आप बोलोगे T इज इक्वल टू m1g साइन थीटा, बट T इज इक्वल टू m2g। फिर आप इसको, हाँ, व्हाट?
Wait a minute. Yes, but have we wrote this correctly? No. Where is friction? तुम फ्रिक्शन देख ही नहीं रहे हो, तो फ्रिक्शन तो मेन है ना. बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स, फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स. लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये, बिकॉज वी डोंट वांट द बॉडी टू स्टार्ट मूविंग, इट इज जस्ट स्टार्ट. ओके, करेक्ट. So m2g is equal to m1g sine theta plus mu L. Mu L what? Normal reaction of first m1g. So m2g is equal to m1g sine theta plus mu L m1g cos theta. Right? So m2g is equal to m1g साइन थीटा प्लस म्यू एल कॉस थीटा. राइट, जरूरत नहीं थी. क्यों नहीं थी? कल ही बताया. मैंने क्या बताया? एक्सप्रेशन जस्ट tan इनवर्स ऑफ 3 म्यू, याद है क्या? तो मैंने क्या बोला था? जस्ट स्टार्ट्स मूविंग. व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज मास? m1 यहाँ पे. एक्सेलरेशन g sin थीटा प्लस, एग्जैक्टली. तो जरूरत नहीं थी. तो दिस इज द मिनिमम मास रिक्वायर्ड to start the motion of m1 on a rough inclined plane. This is how you can solve this question. I mean this topic. उसके बाद एक ऐसा है कि टेबल के टॉप पे एक चेन है ना. मिनिमम मास हंग टू मूव द चेन डाउन. वो मैं आपका न्यूमेरिकल, पहला ही न्यूमेरिकल बोलूंगा कल. फर्स्ट न्यूमेरिकल विल बी दैट. ओके, सो बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग टू डू इट दैट वे इंस्टेड ऑफ थियरी. बोर हो जाओगे आप. दूसरा ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द वेज. मतलब हमारे पास ऐसा केस है, हमारे पास एक वेज, वेज मतलब इंक्लाइन प्लेन है. पहले स्मूथ था, अब रफ कर दिया. तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नाउ? तो लेट्स सी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between body and wedge. Right? So as I told you, initially we will be taking a smooth wedge, और दूसरे केस में we will be taking the same wedge. Same wedge मतलब there is no change in anything except that you are adding friction here. रफ कर दिया उसको. Okay, for smooth wedge, so this is smooth, this is rough. In both cases the body is sliding down. तो इसके ऊपर एक बॉडी है जो s डिस्टेंस कवर करके स्लाइड होगा, और इसके ऊपर भी एक बॉडी है जो s डिस्टेंस कवर करके नीचे आएगा. तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at square. Initial velocity is 0 because I am releasing it, so it starts from rest. So s is equal to half. What is a in this case? G sin theta t square. क्योंकि अपने आप तो नीचे नहीं आएगा, वो g का साइन कंपोनेंट की वजह से आएगा. रफ के केस में क्या होगा? s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at square. u तो 0 है, half. What is a for a body coming down? Yes, first minus. Very good. G sin theta minus mu cos theta t square. दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम ही कवर किया, s और s. तो मैं इक्वेट कर सकता हूं. तो आई कैन राइट डाउन हाफ g sin theta t square इक्वल टू हाफ g sin theta minus mu cos theta t square. कैंसल 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 कैंसल. तो sin theta इक्वल टू sin theta minus mu cos theta.
जीरो हो गया, फिर कहाँ गलती हुई? एक छोटी सी गलती तो पक्का हुई है। नो, नो, नथिंग रॉन्ग विथ साइन थीटा। लॉजिकली सोचो। फ्रिक्शन, यस यस, फ्रिक्शन व्हाट? नहीं, फ्रिक्शन लिया है हमने, फ्रिक्शन लिया है, फ्रिक्शन को कंसिडर। हाँ हाँ, छोटी सी गलती की है, बहुत छोटी सी गलती है वो, और वो गलती एक्सपेक्टेड भी थी। बताओ, मुझे एक चीज बताओ, स्मूथ सरफेस से अगर मैंने बॉडी को रिलीज किया, सपोज उसको नीचे आने में 5 सेकंड लग गए स्मूथ सरफेस से, हाँ ठीक है। अभी मैंने उसी सरफेस को रफ कर दिया और उसको वापस ऊपर से रिलीज कर रहा हूँ, सेम, तो द टाइम विल बी मोर। तो मान लो रफ सरफेस पे टाइम इज एन टी, ज्यादा टाइम लगेगा नीचे आने के लिए, एन टाइम्स ऑफ द टाइम टेकन इन केस ऑफ स्मूथ। तो दैट इज वेयर वी मेड अ मिस्टेक, तो एन टी स्क्वेयर। तो इसलिए यू नीड टू बी केयरफुल while writing things. तो अब you can write down half g sin theta t square equal to half g sin theta minus mu cos theta n square t square. अभी सेफली यू कैन कैंसल आउट व्हाट यू वांट। आपको मिलेगा sin थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर sin थीटा माइनस म्यू n स्क्वायर cos थीटा। फिर हमारा इंटरेस्ट म्यू में है, तो मैं म्यू n स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू n स्क्वायर sin थीटा माइनस sin थीटा करूंगा। फिर मैं म्यू n स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू sin थीटा n स्क्वायर माइनस 1 करूंगा, मतलब ये मुझे मिल जाएगा tan थीटा। तो म्यू n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा, राइट। वैसे अगर आपको सिर्फ म्यू में ही इंटरेस्ट है तो फिर म्यू मिल ही गया आपको, क्योंकि म्यू विल बी सिंपल tan थीटा इंटू n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर। दिस इज म्यू, हो गया म्यू सॉल्व, राइट। तो अगर बोला होगा a body takes double the time to cover the same distance on the same wedge but with friction now, and the wedge is at an angle of, let us say, 45 degree. What is the coefficient of friction? Tan 45 is 1, double the time, n is 2, 2 square 4 minus 1, 3 by 4, 3 by 4.75 is friction। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ओके। देन so what we can do next is we want to see stopping of a block due to friction. We have already done this while doing numericals, but I want you to also know how to derive this kind of equations. Most stopping of block due to friction. And in reality, any body stops because of friction. Okay, it stops because of friction. Then, because this is the only resistance you can have here. पहला केस लेता हूं मैं हॉरिजॉन्टल रोड पे। So on a horizontal road, we have an object which is moving. Let's say with initial velocity u, it stops after covering a distance s, मतलब final velocity will be 0. I want to find out what is s. तो आपको ऑलरेडी पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 as,
ये लेंगे यहाँ पे, राइट। देन I have told you on a horizontal road you have A equal to mu g if there is friction, याद है क्या, है ना। वो कैसे आया था वो पता है क्या, फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, बट force of friction is mu times of normal reaction, right? Okay, but normal reaction is mg, तो आप इसको और इसको इक्वेट करोगे तो a equal to mu g मिलेगा, है ना। तो you will get a equal to mu g here, so you will have 0 u square minus 2 mu g s, तो आपको मिल जाएगा s equal to u square by 2 mu g, दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। हमने ऑलरेडी ये लास्ट सेशन में एग्जांपल्स के फॉर्म में सॉल्व कर लिया है ये, वी ऑलरेडी नो दैट। ओके, तो व्हाट इज द टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया। हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम टेकन, जोक, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u माइनस at, 0 इक्वल टू u माइनस म्यू जी टी, तो t इज इक्वल टू u अपॉन म्यू जी। दूसरा, on inclined road, okay, so on inclined road, ये आपके पास inclined road है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, ये है थीटा, इट इज गोइंग अप, तो द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप, इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ s बिफोर स्टॉपिंग, राइट। तो सेम थिंग, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, व्हाट इज a for a body going up, जल्दी, यू आर टेकिंग प्लस म्यू, वेरी गुड, इनटू s, हाँ तो सॉल्व कर लो ना यहाँ से, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2, इन शॉर्ट यू स्क्वायर बाई टू ए आता, मैं सीधा यहीं से करता हूँ, व्हाट आई डू इज आई डोंट गेट इनटू दिस काइंड ऑफ डिराइविंग थिंग, मुझे पसंद ही नहीं है ये सब, आई डोंट डू एनी ऑफ दिस, ये काहे का डायग्राम और काहे का क्या, कुछ नहीं, आई डोंट रियली गेट इनटू एनी ऑफ दिस, मुझे पता है स्टॉपिंग हो रहा है ना, स्टॉप हो रहा है, s इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, अरे a हॉरिजॉन्टल सरफेस में म्यू जी होता है और s इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, a अगर गाड़ी ऊपर जा रहा है तो g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा होता है, सो आई डोंट रियली डू द वे दे से कंपोनेंट्स करो, ये करो वो करो, आई रिमेम्बर क्या करना है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो बीच में प्लस लगने वाला है, दैट्स इट, गुड, राइट। सो then you have another case in which stopping of two blocks due to friction, ऐसा है, इसका भी हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है, स्टॉपिंग ऑफ टू ब्लॉक्स ड्यू टू फ्रिक्शन, सिर्फ यहां पे इतना ऐसा केस है कि यू हैव टू masses, block A with mass m1 and block B with mass m2, they are connected by a string, इसको मैंने खींच लिया और छोड़ दिया, तो they will first like vibrate but after some time they will come to rest because of the friction, okay, so they are stopping, both of them are stopping, so what is the ratio of, in this case what is the ratio of stopping distance, मैं ये डिराइव नहीं करूंगा, s1 by s2 is m2 by m1 स्क्वायर, हमने ये डायरेक्टली एग्जाम्पल में लिया था, आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर इटसेल्फ, ये मैंने बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ओके ओके। देन देयर आर मेनी मोर थिंग्स, जैसे एक रफ वेट सरफेस है, ये रफ है, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी हियर, वो भी निकाल सकते हो आप, सो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी इफ द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, v square equal to u square, वही केस है, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट आल्सो बिकॉज इट कैन बी कवर्ड इन एग्जांपल्स, during examples, right, so that's all
with the theory of friction.